Medical Association welcome you all to this monthly CME in line with what DHMA has been conducting every last Sunday of every month since it was established and registered by Dr. Yudhvir Singh in 1932. This makes DHMA the oldest and mother association of all homeopathic associations in Delhi. Let me introduce you Dr. Yudhvir Singh. He was the first health minister of Delhi and the first chairman of homeopathic system of medicine board in Delhi, where he held the position from 1958 to 1969. He founded this library, Nehru Homeopathic Medical College, and various charitable homeopathic dispensaries in Delhi. Along with these CMEs, we keep conducting various other activities as well, like webinars, national conferences, quizzes, health camps, etc. So those who still are not the members and they wish to join this esteemed organization, they may visit our website www.dhma.in, or you may write to us at dhmadelhi@gmail.com. You can even contact us at 9711423617. Now I would request Dr. Usama to please escort our Vice President Dr. S.P. Verma sir to the dais. As a President, Dr. Shweta Singh is out of town. So I now request our advisor, Dr. Tyagi sir, to please escort our patron, Dr. V.P. Singh sir, to the dais. I request Dr. Richa, our treasurer, to please escort our guest speaker of the day, Professor Dr. Vipin Jitani, to the dais. Now I would like to request our Vice President Dr. S.P. Verma sir to please welcome everyone and allow us to proceed. आज की CME में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दी जाए. Thank you, sir. Now I request the dignitaries to please come forward for lamp lighting and seek the blessings of our Master Dr. Hellman. दीप्ति दीप्ति वहाँ हेल्प करो वहाँ. I would like to read the minutes of the meeting from the last CME which was conducted in April. The continuous medical education series of Delhi Homeopathic Medical Association was held on 28 April 2024 along with birthday celebrations and launch of April issue of the Hahnemanian Homeopathic Sandesh at the Geetanjali Hall, Delhi Public Library, Dr. S.P. Mukherjee Marg, Chandni Chowk, Delhi 111006. From 10 a.m. to 5 p.m. in presence of 51 members including the executives. Everyone had breakfast there first and then the event was started by Dr. Deepak Sharma, General Secretary, and Dr. Sakshi, the Organizing Secretary of the Association, by welcoming all and sharing the past and present of DHMA and its activities with all the attendees. Hence encouraging the non-members to become a member of this dynamic organization, sharing all the contact information. She then invited the President of the Association, Dr. Shweta Singh, Patron, Dr. V.P. Singh, guest speakers, Dr. Om Sai Ramesh and Dr. Navneet Vidali to the dais. Dr. Shweta welcomed all the delegates present and then the Chief Advisor, Dr. Yudhishthir Singh sir, was called upon the dais to welcome Dr. Om Sai Ramesh with a patka and a planter, and the Vice President, Dr. S.P. Verma, was called up to welcome Dr. Navneet Vidani with the same. Post this, the dignitaries
dais were asked to pay homage to the Master Hanuman by lighting the lamp, and Dr. Deepti and Dr. Jyoti were invited over the dais to sing Saraswati Vandana. Then Dr. Sakshi read the minutes from the last meeting from March CME and asked those present if they had any objection about it, but nobody raised any point. So Dr. Shweta and Dr. Deepak signed the minutes. Then we proceeded towards the 269th birthday celebrations of Master Hanuman, which was marked by cake cutting by the dignitaries on the dais and a beautiful poem on Hanuman's life history by Dr. Deepika Balati. Post this, Dr. Deepak Sharma shared history behind the DHMA journal, the Hanumanian Homeopathic Sandesh, and got the latest issue launched by the dignitaries present, which was themed Homeopathy's Holistic Approach to ADHD and ASD. Then the day proceeded towards the introduction of the first speaker of the day, Dr. Om Sai Ramesh, and inviting him to the mic so that he could share with us his expertise on ASD, being a professor at Lady Hardinge Medical College, Delhi. The insights and diagnostic features he shared were commendable for practitioners as well as students. His 2-hour-long session received huge applause and gave rise to a wonderful discussion with learners post his session, where many asked various questions from the speaker, to which Dr. VP Singh, Dr. Shweta Singh and Dr. Deepak Sharma shared their views. As a gesture of gratitude, they presented a token of appreciation to Dr. Om Sai Ramesh. Then all the attendees were requested to proceed towards lunch and then requested to join back after half an hour for second session of the day. Post lunch, Dr. Navneet Vidani was invited and introduced to the dais to share his knowledge about homeopathy's triumph over autism. His session gave tremendous insights about homeopathic approach and gained lots of applause. Dr. VP Singh, Dr. Shweta and Dr. Deepak shared their views about his lecture and presented a token of appreciation to him. Following the scientific sessions, DHMA conducted a fun educational activity for the delegates, a quiz competition on Hanuman's life history headed by Dr. Garima, where 5 winners were chosen and given a memento as a token of appreciation. All the delegates were given participation certificates on the dais itself, and at the end, sponsor of the event, Mr. Inderjeet from Nisha Medico's authorized distributor of RDPL, was invited to the dais and awarded with a token of appreciation. Post this, Dr. Sakshi again reminded all to renew their memberships and share their feedback over official email ID of DHMA. Dr. Shweta at the end gave away a vote of thanks to all those present and asked them to proceed towards high tea and refreshments, which had contributions from Mr. Dharmendra Tripathi as well, after a group photograph of all the delegates. Any suggestions or feedback regarding the minutes from the last meeting? Alright, now let's head towards the scientific session of the day. Let me introduce today's honorable speaker, Professor Dr. Bitpin Jethani. He has 20 plus years of experience and is currently working as Professor and HOD of Organon of Medicine at NHMC Delhi. He is also serving as Head of Office and Postgraduate Guide there. He is a recipient of various awards like Hanumanian Award, Dr. D.P. Rastogi Award, Ayush Excellence Award and many others. He has presented papers at various national and international conferences like the World Homeopathic Congress of LMHI, LMHI Global Colloquium, international conventions, etc. He has published articles in peer-reviewed journals such as Homeopathy International Journal of Homeopathic Medicine, H-Pathy, etc. He is a member of PG Syllabus Committee of National Commission for Homeopathy and a review of research articles for CCRH. And me being fortunate enough to have been his student some 12 years ago, I'm really honored to have you here with us, sir. Please come forward and share your expertise with us. DHL क्यों नहीं इसको वेबसाइट पे क्यों नहीं अपडेट हुआ आज का? कौन सा? आज का प्रोग्राम मैं भी चेक कर रहा था तो मेरे इवेंट में ये
Thank you, dear. Thanks a lot. So, first of all, a warm good afternoon to everyone. I know it's such a warm day, and in fact, it's a pleasure to see you braving this kind of heat to be a part of this academic session. So, it's an honor for me that I have some guests who have come all over from different parts of Delhi to be part of this conference. And obviously, DHMA, we all know, being one of the oldest homeopathic association. I was just talking to Dr. Deepak, and he did enlighten me that, in fact, which I was not knowing, that this was started right from Dr. Jugveer Singh. So, coming from a man who gave homeopathy the footprints in Delhi, I understand that this organization happens to be a prestigious one. So, thank you DHMA for giving me this opportunity, specifically Dr. Deepak sir, Dr. Verma, Dr. Tyagi, Dr. Osama. All thanks a lot for giving me this opportunity to share whatever little I know about homeopathy, about Organon, about clinical medicine, and I'll try to share my experiences with you because मेरा एक मानना है कि if you learn something, you can, because human memory has a limited capacity. So if you learn something, if you mug up something, you can hold it for few days, few months. But if you understand something, if you understand it, then there is no limits to how long you can hold on to it. And Organon is one subject which I think has to be understood. When I was a student, just like many of you, I used to mug up Organon. Because मुझे लगता था कि वाइटल फोर्स पे एक ऐसे लिखना है, एक इंडिविजुअलाइजेशन पे एक ऐसे लिखना है, एंड तो इसे थोड़े अफोरिज्म पता होने चाहिए, थोड़े एंड लकीली आई वाज गुड इन इंग्लिश, सो I could write on and on about different concepts in Organon. But gradually when I went to NIH, National Institute of Homeopathy, then I understood that how very practical this book is. Hahnemann first experimented, experienced and then wrote it. तो उसने जो अपना पूरा clinical experience था, वो उसने Organon में डाला. So obviously since he brought his clinical practice in the form of a book, obviously this could not be a theoretical book. And once you start reading more and more about science, specifically quantum science, you will understand that whatever Hahnemann has written in this book is commendable. It is beyond what, see, we are talking of an era when there was no bacteriology, there was no Louis Pasteur, there was no Robert Koch, and even in that era, he wrote about what is infection. For example, 11 footnote जब हम पढ़ते हैं, what is infection? And जो pathology आज के time में infection समझती है, which is a material transference. He said obviously there's a material transference, but infection is also non-material transference. मैंने आपको गुस्सा कर दिया, आपको बुरा लग गया, आपको इंडिग्नेशन की हिस्ट्री, आपको कॉलिक शुरू हुआ, हम कोलोसिन दे देते हैं, मगर ये भी एक इन्फेक्शन है, बिकॉज आई हैव ट्रांसमिटेड अ डिजीज प्रोड्यूसिंग इन्फ्लुएंस into a system, and this is what he says is infection, not just a material transference but even a non-material transference. And if you read his article of 1832 on cholera, there was no, let us understand, there was no bacteriology at that time. Then still he says that this disease cholera spreads because of excessively minute invisible organisms. He's talking in 1832, something which gradually came to know in bacteriology as Vibrio cholerae. So such was the greatness of this man, that he was much ahead of his time. And being an allopathic physician, being someone who had been ingrained with allopathic knowledge, still he developed a system which was based on energy medicine. So, and therefore, now whenever I tell my students, so it's like in Organon you can find the loftiest of the wisdom. It's just how much you can get into it, how much you can perceive it. So with this background in mind, I thought I will be taking today's topic. When I was talking with Dr. Deepak, I thought what topic I should take. So I thought let me give a gist of how you can prescribe on the basis of what is written in Organon, right? And that is why I took up this topic, which is, can I have the next slide please? Which is what are the different angles of prescribing as per Organon of medicine, with some case studies. Before I go on to describe the cases and what section of Organon would be relevant there, one thing I can
I would like to convey is, I'm just giving a glimpse of it. I'm not saying that we're discussing all the cases which have helped me, but for every different one angle of prescribing, I'll just give 2 or 3 cases, so that angle of prescribing is clear to us. And there's nothing, whatever I will be talking, most of us would be doing it. I just would be telling you where the directions are given in Organon, and why is it so important that in our clinical practice we read Organon repeatedly, because every time that you read, every time you discuss Organon, just to give one small example, when we were student, so we often used to mug up aphorisms, as I said. Just one aphorism 5 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें इतनी अच्छी बात लिखी है अबाउट कॉजेशन. हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जैसे एक पेशेंट हमारे पास आता है, और एक खाने की खास बात और भी थी, जहाँ वो ये तो बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी साथ बताता है. अफोरिज्म 1 में जब उसने लिखा कि व्हाट इज क्योर, व्हाट क्योर इज नॉट, अफोरिज्म 1 फुटनोट में दे दिया. When he talks of theoretic medicine, what is theoretic medicine and what theoretic medicine is not. So इसी तरह जब अफोरिज्म 5 उसने लिखा, जब उसने लिखा causation, अफोरिज्म 5 is all about causation, तो उसमें एक लाइन वो लिखता है, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of exciting cause of acute diseases, as also the most significant point in the whole history of chronic disease so as to discover its fundamental cause. अब पढ़ने में तो लगता है कि यार ये तो कॉजेशन बात कर रहा है, कॉजेशन की क्या फ़र्क है, मगर फ़र्क बहुत है. एक्यूट डिजीज में वो लिखता है यूजफुल टू द फिजिशियन, और ये मेरे को अपने जब पेशेंट्स देखते हुए बहुत काम आता है. इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अफोरिज्म 5 का, कि जब हम लिखता है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ एक्साइटिंग कॉज ऑफ एक्यूट डिजीज. कहने का मतलब ये है कि जब एक्यूट डिजीज से हम डील कर रहे हैं, तब तो एक्साइटिंग कॉज इंपॉर्टेंट है. एक्साइटिंग कॉज क्या हो सकता है, आपने बाहर का खाना खाया, आपको XYZ सिम्टम हो गया, आपने ठंडा पानी पी लिया, आपको XYZ सिम्टम हो गया, आप बारिश में चले गए, आपको XYZ सिम्टम हो गया. दैट्स एन, जिसको हम एलिमेंट फॉर्म पढ़ते हैं मटीरियल मेडिकल में, राइट. ये एक्यूट डिजीज तक ले है. क्रॉनिक डिजीज में ऐसा नहीं चलेगा. उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया अफोरिज्म 5 में कि यूजफुल टू द फिजिशियन हिम टू in assisting him to cure are the particulars of exciting cause of acute disease, exciting cause for acute disease. But for chronic disease, उसमें ये क्लियर करता है कि ये ailment from नहीं चलेगा. और इसी बात को इसने लिखा as also the most significant points in the whole history of chronic disease, so as to discover its fundamental cause. I'll tell some cases. I'll discuss some cases and then I'll differentiate what is the difference between these two statements. और 206 फुटनोट में इसको फर्दर क्लैरिफाई कर देता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो ये बोलता है कि मुझे एस्थमा हुआ, मैंने ठंडा पानी पी लिया था, उसने एग्जांपल वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे एक तकलीफ हुई, दैट आई डेवलप्ड एस्थमा और XYZ chronic complaint after taking cold water or after exertion. Don't believe it as the cause of disease. Ailment form यहाँ पे नहीं लेगा, because these things, he further explains, these things are too trivial to continue or develop a chronic disease over the years. और यहाँ से मुझे समझ में आया कंसेप्ट ऑफ एनामनेसिस और मियासिस. तो टाइम बीइंग शॉर्ट, मैं बहुत सारी चीज़ें पर आप डिटेल में नहीं ले पाएंगे, बट अगर मैं आप सबसे स्टूडेंट से खास करके रिक्वेस्ट है, अफोरिज्म 5 और 206 फुटनोट को आपस में ज़रूर पढ़ें, और तब एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग और क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग में डिफरेंस समझें. और तभी 81 फुटनोट में 82 अफोरिज्म में वो ये लिखता भी है कि एक्यूट डिजीज बहुत आसान है. केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिजीज मच मोर इजियर, बिकॉज आपको सिंपल एलिमेंट फॉर्म लेना है. आपको जो नजर आ रहा है एलिमेंट फॉर्म दिख गया, बिकॉज एक्यूट इज व्हाट, एक्यूट इज फिजियोलॉजिकल. एक्यूट इज फिजियोलॉजिकल, इमोशंस आर फिजियोलॉजिकल, बिकॉज इमोशंस आर गवर्न्ड बाय बायोमॉलिक्यूल्स. तो इसलिए इमोशंस, चाहे वो एंगर है, ग्रीफ है, इंडिग्नेशन है, सब में एलिमेंट फ्रॉम काम आएगा एज फार एज एक्यूट डिजीज कंसर्न. बट सेम वुड नॉट होल्ड ट्रू व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज.
And what would hold true in chronic disease, that is what we are going to discuss with some of the cases. This is just to give one example. मैं आपको जो एक example दे रहा हूँ कि Organon is basically such a very practical book. It is we who have to understand. There was used to be a very famous author, August Baer. I don't know how many of you have, whatever. उसका एक wording हुआ करते थे. It is possible to find in the Organon the loftiest of the wisdom or the greatest of the folly, depending upon the wisdom of the reader. आपकी समझ से आप Organon को greatest wisdom wise book भी सोच सकते हैं, or it can be just a foolish article. It is dependent upon the wisdom of the reader. इस बात को sorry, just so I just so what I was saying was कि हमारे को जो gems है ना Organon में सब it's just scattered. We just have to understand, and another thing which is important for us to correlate Organon with modern medicine. And not only for Organon, I also tell students even Materia Medica. देखो कुछ words होते हैं like softening of brain, like green sickness, like these are the words which you don't find. आज के modern medicine उसको use नहीं करती. But अगर आप उनका meaning देखोगे तो वही meaning आजकल modern medicine में पाया जाता है. Like softening of brain. I was just taking last week. I was taking a seminar on phosphorus. So softening of brain is basically encephalomalacia, something which happens after hemorrhage. So now, so basically that encephalomalacia is post-cerebral event after cerebral hemorrhage, and we know phosphorus is a very good drug for it. तो उसी को literature में softening of brain लिख दिया गया. Similarly, green sickness, when there is excessive degree of corpuscular degeneration, it leads to the pallor, and that pallor gives a greenish tinge, right? So this was what we call chlorosis or green sickness. Again, for which phosphorus is one of the good remedies. Consumption आज के हम नहीं use करते हैं, but if you read a tubercular diathesis, it is so very analogous to consumption. So it is not just Organon, but everything that we read in our literature, we should be able to correlate it with the modern medicine, and that is where our ability as physician lies. That is where we need not mug up the concepts. We need to understand them and then apply it. Right? So going on with this, एक चीज मैं हमेशा whenever I take a lecture one, मेरे को एक if you read the 5th edition preface of Organon, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, और ये लाइन आज के टाइम में ज़्यादा वैलिड है, बिकॉज आज के टाइम में ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट आ गए हैं वेयर दे ट्राई टू मेक अ न्यू मेडिसिन, अ न्यू मटीरिया मेडिका, अ न्यू ऑर्गेनॉन, जबकि हैनेमन ने बहुत सिंपल सी बात कही है, यू कीप इट वेरी सिंपल. आपके सिस्टम जब हैनेमन व्हेन टॉक्स ऑफ द अफॉर्जन 2 बात करता है तो उसने एक लास्ट लाइन लिखता है, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स. क्यों लिखता है वो? कि ये ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि जैसे किसी को भी बताया जाए, इट शुड बी इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर इट. और माइंड यू, उसने कभी भी, जब हैनेमन ने अपने ऑर्गेनॉन लिखी, उसने ऑर्गेनॉन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लिखा. ही रोट ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. ही डिड नॉट स्टार्ट विद द फिजिशियन अकॉर्डिंग वन में. ही डिड नॉट राइट होम्योपैथिक फिजिशियन, ही रोट द फिजिशियन. मतलब कि अगर आप फिजिशियन हैं तो अगर आपको सीपीआर करना जरूरत है तो सीपीआर करो. अगर आपको साइकोथेरेपी देना जरूरत है, उसने लिखा है कि यहाँ पे साइकोथेरेपी दो. अगर सर्जरी की जरूरत है तो फॉर्दर 186 में बहुत क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, सर्जरी की एडवाइस करो. अगर किसी पेशेंट में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है तो अफॉर्जन 7, अफॉर्जन 77 में बहुत क्लियरली लिखता है यहाँ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को आप एड्रेस करो. डजंट मीन कि हमारे पास इफ अ केस ऑफ डिहाइड्रेशन कम्स टू अस, so we just don't give medicine. You also tell the patient to take ORS. This is nothing but an outcome of Horizon 7 and 77. So the point is that he did not, when he says that you become your physician, means you should know where your scope is as a homeopathic physician, but you should also know what other things, other modes you need to apply whenever the patient comes to you. And that is why he wrote the book Organon of Medicine. He writes the physician. He did not write the homeopathic physician. Homeopathy word तो 23 अफॉर्जन में आता है.
सीधा बाद में. Till first 22 aphorisms, he is just talking of what is healing art. What is healing? उस healing के लिए aphorism 284, 285 में देखेंगे, he talks of mesmerism. He talks of baths. So what he is saying is कि जहाँ पे as a physician आपके rationality जो बताती है, उस हिसाब से you can use aphorism 67 footnote. He also talks of antipathy. कि जहाँ पे सडन पॉइजनिंग हो गई तो आपको एंटीपैथी देना है, सडन ड्राउनिंग हो गई आपको एंटीपैथी देना है. जबकि बात तो he was a homeopathic physician, yet he talks wherever whatever has to be used, please use it as a rational physician. और तो इसलिए उसने एक बात लिखी जो कि उसके प्रीफेस में टू द if you read the 5th edition, प्रीफेस टू द 5th edition में लिखा हुआ है that homeopathy is a perfectly simple system of medicine, remaining always fixed in its principles as in its practice, which, like the doctrine whereupon it is based, if rightly apprehended, will be found to be so exclusive and only in that way serviceable, that as the doctrine must be accepted in its purity, it must be purely practiced, and all backward strain to the permission routine of it is totally inadmissible. दो ही चीजें बात कह रहा है वो, keep it simple. Let us not complicate our materia medicas, or let us not complicate our organon just by superimposing another different modes of philosophies. जो प्रायोनिया आपको समझ में आनी चाहिए वो प्रायोनिया मुझे भी समझ में आनी चाहिए, जो फॉस्फोरस आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं जो whatever cases are discussing आपको लगेगा इसमें कुछ भी नया मैंने नहीं बोला है. It is all there in the textbook. All I have done is by understanding organon, by understanding materia medica, what can be applied where. That's the only concept that we need to understand. And if I can put forward this concept, I think at least the purpose is partially it would be successful. Osama, can the projector थोड़ा नीचे को आएगा थोड़ा. Even one-sided dialogues. यहाँ कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं. It's all we all learn. मैं डॉक्टर दीपक से एक बात जरूर सीखता हूँ कि होम्योपैथी को जितना बच्चों तक फैला सको, जितना पब्लिक तक फैला सको, कोशिश करनी चाहिए. थैंक यू सर. एंड बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यंग जनरेशन, मुझे इनकी बात अभी तक याद है दैट वन ऑफ द pledges that he took was to ensure that the homeopaths don't go without their livelihood. And that is why he ensures that he opens up clinics, he gives opportunities to students. Something that's a learning point. So all of us are learner basically. So there is no teacher, there is no student relationship between us. It is that whatever I knew, I did, I'm discussing with you. You have any inputs, you have anything that we can discuss, we'll surely be discussing, right? So it's just a two-way communication. I don't want it to be just a one-way communication that I'm lecturing you on something. This is just my personal feeling, my personal belief, which I'm going to share with you. The first concept which Hahnemann elaborated upon organon, which we all know, was the importance of observation. Now, this मैं एक दो cases स्टॉलवर्ट्स के केस बुक से ले रहा हूँ and then come to my own cases. तो एक ड्रग है, आपने शायद हम कालिका को हम पढ़ते हैं in terms of breathlessness, in terms of backaches, musculoskeletal system. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि मैं यहाँ पे तो इतना शायद टाइम नहीं होगा, बट अगर आप काली ग्रुप को समझो, काली is basically with the potassium salt which has number one Kali group, because potassium is a very important ion of our cellular matrix, the intracellular and the extracellular matrix. तो जो सोडियम एंड पोटेशियम बोथ इन फैक्ट, तो जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स की जो ड्रग्स होंगी उनमें अडीमा जरूर आएगा, बिकॉज दे आर बेसिकली क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर्स, राइट. जब सोडियम पोटेशियम जो दो वैल्यूज हैं विच आर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, उनकी कंसंट्रेशन से फ्लूइड इधर की तरफ हो सकता है, फ्लूइड इधर की तरफ हो सकता है. तो इसलिए आपको नेट्रेम्योर और काली ग्रुप में अडीमा जरूर मिलेगा, डिफरेंट फॉर्म्स में अडीमा मिलेगा थ्रू आउट द प्रूविंग. सो अच्छा, काली बाय नेचर वी ऑल नो इज अ वेरी प्रिंसिपल रेमेडी, स्टिफ रेमेडी. तो इसलिए इसका रिमैटिक स्टिफ जो प्रिंसिपल्ड पर्सनैलिटीज होती है ना,
उनका rheumatic manifestation जरूर आता है, because there is nothing more stiff than the bones, right? There is nothing more narrow shaped than the rheumatic system. So इसलिए जैसा उसकी और जैसा उसका टेम्परामेंट होगा वैसे ही उसकी पैथोलॉजी भी आएगी. मतलब that is how at least I read my materia medica and I read my drugs. So जैसे तो खैर point of discussing was not Kali was one of the important. Gordon ने अपने लेसर राइटिंग में लिखा है कि there was an epidemic of whooping cough going on. तो उसे एक important symptom मिला that he found that there was a swelling between the eyebrows and the eyelids. He saw this in many cases, and this he found in proving of Kali cough. And on the basis of this observation, next please. On the basis of this observation, he gave Kali to many number of patients in this epidemic of whooping cough. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऑब्जर्वेशन की बात सिर्फ हैनीमैन ने नहीं की, काफ़ी स्टॉलवर्ड्स ने अपने प्रैक्टिस में ऑब्जर्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन प्रिस्क्राइबिंग. नेक्स्ट, इसी तरह केम्स की लेटर राइटिंग पढ़ते हैं तो उसमें से केस लिखा हुआ है दैट इज वाज द केस ऑफ एपिथेलियम ऑफ लेफ्ट अपर आईलिड. दिस यूज्ड टू विद फीचर एंड ब्लीडिंग, द ब्लड हैड अ डार्क रेड ह्यू and this used to happen in spring season. No other symptom, he gave lachesis and the epithelium got better. So left-sidedness, spring season, bleeding, good enough observation to prescribe lachesis. Next. One of my favorite book is Kopikar. One important book I will tell every one of you to read, which is an excellent exposition of how you can come to single remedy on the basis of important symptoms. एक book है My Clinical Experiences by कोपिकर, और उसमें एक केस वो कोपिकर देता है कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ सैर कर रहा था तो उसने देखा कि आवाज़ जगह से बहुत आवाज़ें आ रही हैं ज़ोर ज़ोर से, और तो पेशेंट बहुत ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहा है. तो दे वेंट इनसाइड, तो पेशेंट कांप रहा था, तो पेशेंट वाज इन चिल्स और बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर बोले जा रहा था. तो कोपिकर इमीडिएटली टोल्ड अस, जो भी उनके साथ अटेंडेंट था, जो भी टू गेट मी पोडोफाइलम. कुछ नहीं, कोई टेस्टिंग कुछ नहीं. Why podophyllum? Because that's a remedy for delirium loquacity during chill. जैसे delirium loquacity during heat is teucrium and lachesis, तो delirium loquacity during chill, Allen's में लाइन लिखी हुई है, but we normally don't give much importance to these lines because हमारे को podophyllum normally पढ़ाया जाता है for the GI system or for the symptoms from overstrain, but this line is very much there for chills, for loquacity happening during chills. You have the specific remedy of podophyllum, and many cases this symptom has helped me. So this was Kopiker's example. All I want to tell you is observation is one of the important things which Hahnemann has stressed in his organon. Next please. और एक बात, अगर हम अफोरिज्म 90 पढ़ते हैं, एक कट जा रहा है यहाँ से, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ. अफोरिज्म 90 पढ़ते हैं तो उसके यही वर्ड्स हैनेमैन ने लिखे हैं कि in order accurately to perceive what's to be observed in patients, we should direct all our thought upon the matter we have in hand, come out of ourselves as it were, fasten ourselves, so to speak, with all our powers of concentration upon it, in order that nothing that is actually present, that has to do with the subject, and that can be ascertained by all senses may escape us. तो ये अपने ऑब्जर्वेशन की बताता है कि अपने ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प रखो, इतनी एस्ट्यूट रखो. इवन 83 अफोरिज्म में उसने जब वो लिखता है व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज शार्प सेंसेस. ही मेंशन शार्प सेंसेस. तो ये अफोरिज्म 90 में क्लियरली लिखता है कि ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ केस स्टडी. एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, केसेस तो मैं बताता ही आपको. ये बहुत शुरू के मैं एग्जाम मतलब करियर में मैं NIH में था, तब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर खान के अंदर था. तो एक पेशेंट आया बैठा, तो उसने कहा ये पंखा बंद कर दो. ठीक है, ओके. तो उसने सर ने दो क्वेश्चन पूछोगे, तीसरी बात सर ने रिपीट करी, तो उसके एक्सप्रेशन जैसे तीसरी बात रिपीट करी, बोला नहीं. सर ने कैसे नक्स फॉर्म कर. 3 things which were important. Number 1, chilliness, right? Number 2, there is something what we call the iota का concept है, aversion to answer when obliged to speak. उसका जो एक्सप्रेशन था ना कि वही काफ़ी था कि मेरे क्यों पूछ रहे हो, why are you asking me again? That expression itself was sufficient
to give us the rubric of IOTA. Anger when obliged to speak, to talk, to answer. And third was his irritability. So इस पे सर, और I still remember this was a case of early stage of jaundice which had come to us, and within a very short span of time, this patient came within a week or whatever, 3 to 4 days he came to us. He was much better. So our listing has not to be a mechanical jotting down of complaints. Our listing has to be a meaningful interaction with the patient, so that you are able to understand the expressions even before the patient said something, right? So that non-verbal communication is very important, and वहीं पे आपकी ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस आ जाती है. नेक्स्ट, अगर हम लेसर राइटिंग पढ़ें तो एक पूरा आर्टिकल हैनमैन ने इस पे लिख दिया, द मेडिकल ऑब्जर्वर. मैं कुछ आर्टिकल्स आपको लेसर राइटिंग से इसलिए बताता जा रहा हूँ बिकॉज लेसर राइटिंग हम कम पढ़ते हैं. बट अगर आप लेसर राइटिंग में एक आर्टिकल पढ़ोगे, द मेडिकल ऑब्जर्वर 4 पेज का आर्टिकल है, बट चारों पेज में हैनमैन ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात लिखी हुई है. चारों पेज, 4 या 5 पेज का आर्टिकल, ज़्यादा लंबा नहीं. बट उसने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं कि whenever you are communicating with the patient, not just what you ask is important, but what you observe is equally important. तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा. इसमें बेसिकली मैंने एक जिस्ट सिर्फ लिया है कि the duty of the observer is not only to take notice of the phenomena and their cause, not only that nothing actually present escapes the observation, but that also what he observes be understood exactly as it is. Right? He's saying don't put too much of interpretation. जो आपको सामने नजर आ रहा है उसे accept करो, right? And then base it. If you think it is an important symptom, take it as part of your totality, right? So I'll request at least the students to read this article of the medical observer, a very small article in fact, but इसे आप जरूर एक बार पढ़िएगा कि वो क्यों इसका emphasis कर रहा है कि observation बहुत important है case statement. Next, एक दो clinical कुछ cases शुरू करते हैं. So this was a case of an alopecia areata in fact, and this was a 23-year-old patient, xenomorphic grade, British complexion with darkish more black. साक्षी सर को माइक दे दो. Alopecia of scalp region. This was a case of alopecia scalp region में अलग अलग spots थे. I'll show you the pictures जैसे हम नीचे जाएंगे. तो she had lot of bald spots in different areas of scalp, right? So this was a case of alopecia, as I said, in scalp region with different bald spots. We all know that alopecia की 3 areata की 3 खास बात होती है. Number 1, highly destructive because it just destroys your hair follicle. Second, it's autoimmune, so therefore just taking a psoriatic symptom would not help. Just taking ailment from would not help. And thirdly, which is again very important, you have to take something which has been there right from the history, the significant point लिखता है ना 5 or 5 में, the most significant points in the whole history of chronic disease, वो ऐसे केस में जरूर applicable होगा, unlike the acute disease where you can depend upon the exciting cause. So this was a patient who had alopecia with the other complaint was that she had pain in knee joints, which was better apart from fermentation, a common symptom, nothing much about it. Then next. एक चीज़ मैं और स्टूडेंट्स को जरूर बोलूँगा कि जैसे जैसे आप पेशेंट्स देखते जाते हैं, पैथोलॉजी को जरूर पढ़ते रहिए, बिकॉज मेनी टाइम्स पैथोलॉजी विल गिव यू द क्लू as long as you're able to correlate with your material medical knowledge, right? So if you know that this is autoimmune, for example, and if you know that this is autoimmune, then your the entry point into the case has to be something very syphilitic or recurrent. Right? It has something very syphilitic or recurrent. That's the most significant points. Right? So this complaint of hair had started. We checked with the etiology. कुछ खास बात मिली नहीं, उसने कहा अचानक शुरू हो गया बस. ठीक है. That was nothing that we could do. And it was gradually increased, and it was more marked in the rainy season. Again, something not very significant because we all know with the dampness. हेयर फॉलिकल्स की ना फेजेस होते हैं. टीलोजन अगर आप पढ़ेंगे, टीलोजन एंड एडिक, आपको याद होगा कोविड में बहुत लोगों को हेयर लॉस क्यों हो गया, राइट? बिकॉज
द पेशेंट जो रेस्टिंग फेज आना चाहिए वो आया नहीं, और बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स और हाई फीवर वो टीलोजन फेज नहीं रहेगा, तो इसलिए टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं. सो और इसलिए रेनी सीजन में टीलोजन एफ्लूवियम फेज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर. सो हेयर लॉस ड्यूरिंग मॉइस्चर ड्यूरिंग रेनी सीजन इज अ कॉमन थिंग. Then she had a history of severely erupted chickenpox at age of 21 years and she was a chili patient. Next. Now केस टेकिंग कर रहे थे, कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था, बट एक चीज़ जो उसकी बहुत इम्पोर्टेंट उसके नेक्स्ट प्लीज हाथ देखकर मिली. Now this patient first of all did not describe, right? This was completely an observation. We found that she had tendency to eruptions on the knuckles, the small joints of hands. Now when we asked about this ki what is the background of this, then the patient said कि मेरे को whenever कोई भी मेरे को एक major illness हुई है, this eruption, for example, chilki one example, जब ये alopecia areata शुरू हुआ तब से उसे small eruptions on small joints हैं. She had a prior history of chronic interstitial pneumonitis, तब उसको eruptions on hands हैं. तो उसने कहा कि मेरे को जब भी जब भी कोई chronic major complaint आती है मेरे साथ ये सिम्टम जरूर साथ साथ डेवलप होता है. नाउ इफ यू रीड अफॉर्डिंग 95, कई बार क्या होता है पेशेंट जो गेट्स यूज्ड टू दिस, वो क्या लिखता है हैंडमिन यही बात लिखता है कि मेनी टाइम द पेशेंट गेट सो यूज्ड टू दैट सफरिंग दैट दे डोंट कंसीडर टू बी इम्पोर्टेंट, व्हाइल ही यूजेस द वर्ड दैट दे आर प्रेग्नेंट विद मीनिंग. He uses the word pregnant with meaning. These are very symptoms that are pregnant with meaning. So this was something very important for us because this was an important concomitant in the whole history of chronic disease. कि बीमारी A हो रही है तो भी concomitant आ रहा है, बीमारी B हो रही है तो भी concomitant आ रहा है. तो ये concomitant उस बीमारी का नहीं है, उस underlying individuality का. Because X, Y, Z, the nature of disease was changing, but still the concomitant was coming up, was flaring up. So on the basis of this, then if you read lesser writings of von Gosen, next please. There's a very good article which von Gosen writes is the relative value of symptoms. उसने एक बहुत important pointer दिया है. When he talks of we all हम कॉलेज टाइम में पढ़ते रहते हैं ना, कुर, उबी, क्वांडो, कोमोडो. तो कुर में उसने लिखा है जब रिलेटिव वैल्यू सिम्टम की बात कर रहा है कि अगर आपको किसी पेशेंट में एज अ कंकॉमिटेंट नॉट एज अ मेन कंप्लेंट, एज अ कंकॉमिटेंट अगर आपको मिलता है सोर्स, बिकॉज उस टाइम पे वर्ड जो होता था सोर्स होता था, जो बिकॉज मेडिसिन हैज नाउ डेवलप्ड, उस टाइम की मेडिकल नॉलेज के हिसाब से उनको सोर्स कहते थे. जो अल्सर्स होते थे उनको सोर्स कहा जाता था. इफ द लोकेशन इज द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड, देयर आर जस्ट टू रेमेडीज, बोरिक्स एंड सीपिया. ये इसने अपनी लेसर राइटिंग में रिलेटिव वैल्यू ऑफ सिम्पटम्स में लिखा है. तो उसमें उसने ये बताया कि नेक्स्ट प्लीज. Every homeopath knows the efficacy of CPI in these ulcers of joints, which have no otherwise distinguishable feature. When this remedy is taken internally without any external addition, it will have cure effect. Medicines which correspond to similar ulcers on other parts of the body in such cases are actually useless. So what he's saying is that if specifically the location is the small joints of hands and there is ulcers or the source or a skin lesion developing around the source, that very specific remedy by CPI. On the basis of this, अच्छा, and one more thing we know, अगर आप CPI पैथोलॉजी पढ़ते हैं, CPI जब हम CPI को जो इंडिफरेंस जो CPI का होता है ना, हम इंडिफरेंस पढ़ते रहते हैं. बियोलॉजी हम पढ़ते हैं ना इंडिफरेंस. But let me tell you, अगर आप अपनी रिपोर्टरी खोलें और मटीरियल मेडिका खोलें, CPI is one of the most caring remedies in psoriatic cells. आप एंजाइटी को चिल्ड्रन डालिए रूब्रिक कैंट रिपोर्टरी में, CPI है. आप फुल ऑफ केयर डालो 3 ग्रेड CPI है. तो ये कहानी क्या है? हम तो इंडिफरेंस पढ़ते हैं. कहानी ये है कि वो रेमेडी इंडिफरेंस उसका सिफिलिटिक फेज है ऑफ CPI. सोरिक फेज में जो सबसे ज़्यादा केयरिंग होगा वो जब सिफिलिस में जाएगा, जैसे और जो सबसे ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस है जब वो सिफिलिस में जाएगा तो सुसाइड में चला जाएगा. आपको मेरे को अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम नहीं सुसाइड करने सोचते ना. वो कौन करेगा सुसाइड सोचने की?
जिसको लगेगा मैं तो कैसे हो गया, मैं तो इतना ड्यूटी कॉन्शियस था, मैं तो इतना आई हैड सच अ हाई स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ, वो उसका सोरिक फेज है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप सिफिलिस फेज में दवाई को पकड़ो। अगर सोरिक फेज में आपको ऑरम के सिम्टम मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि डोंट गेट अ स्टीरियोटाइप इन योर माइंड कि पेशेंट अगर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन है तो सीपिया नहीं हो सकता। वो सीपिया होगा अगर उसके बाकी सिम्टम सीपिया के हैं, तो दिस इज नोवेयर अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ सीपिया। डिल्यूजन वर्कलेस क्यों लिखते हैं हम ऑरम में? क्योंकि उसको मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये उसका हाई लेवल ऑफ ड्यूटी कॉन्शियसनेस है, ये उसका हाई लेवल ऑफ ड्यूटी कॉन्शियसनेस है। और वो जब उसमें फेल हो जाता है, he goes into the other way around, just like CPR goes into indifference, right? So you have to read your material medicals in conjunction with repertories, so that you are able to form, because जो एलेंस पे लिखा है वो अलग अलग शेड्स ऑफ मेडिसिन, अलग अलग एक रेमेडी के अलग अलग शेड्स ऑफ म्यादो में लिखे हुए। Ignitia we always read hysterical, again that's a syphilis part of ignitia. What is soric is when he writes the word amicable, sensitive, and then syphilis she goes into hysteria, the dissociative disorder. So the point of telling you is कि let us not be very stereotyped about our remedies. If a remedy moves through phases, through a journey, right from a soric phase to a psychotic phase to a syphilitic phase. So many times what we read in our literature is only the soric phase or only the syphilitic phase, but that doesn't typify it. Am I clear on this point? Next please. So on the basis of chili dispersion and the typical location of the lesion, observe that in small gingiva the patient was prescribed CPA in occasional repeated doses, and she showed a marked improvement in terms of alopecia patches. Next please. So this was the spot of alopecia, then this was completely got covered. Next, this was the back, this was the spot of alopecia, occipital lesion, then some hair thin, then this completely got covered. So this autoimmune disease got better with CPA, and I normally changed medicine only when I feel that I need to give complement something. Otherwise, I normally, this is my, those who have seen me in OPD working in the college, I normally don't change the medicine until I find a very strong reason to change it. Right? Thank you. So next. This was a very, this was a learning case for me also. This was a case of a child, a hyperactive child, who had many features of ADHD. He would not sit still, he would not concentrate, he would not be in one position, he would just come impulsively, he would throw things, aapse pen uthayega, फेंक देगा, all symptoms of ADHD. Right? This was the next piece. This was a child who complained that he was unable to concentrate with extreme hyperactivity. He was very destructive, would throw off and scratch others. He was unmindful of putting himself in dangerous situations. ADHD, right? ADHD type. Next. तो इस पेशेंट में ना we gave different medicine, it was not working. Right? कहाँ pediatrician की knowledge आपको काम में आ सकता है? तो this patient when they showed him to the pediatrician, उसने एक चीज़ बताई कि मैंने फोटोज में भी दिखाई गई, अगर आपको इसका एक पार्ट ऑफ बॉडी के दूसरे में देखोगे ना तो दे आर नॉट सिमेट्रिकल। हैंड्स देखोगे, वन इज मोर चबी, वन इज स्मॉलर, वन लेग इज थिनर, वन लेग इज स्टाउटर। उसकी कोई भी बॉडी पार्ट नॉट सिमेट्रिकल। इसको एलोपैथिकली सिल्वर रसल सिंड्रोम कहते हैं, विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, सिल्वर रसल सिंड्रोम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ADHD like symptoms along with the asymmetry of the body parts. Now this is not my knowledge, this was the knowledge of the pediatrician whom they consulted. But this is where it helped me. And how it helped me? Silver rसल सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा. This was something which we also learned. हमें भी नहीं पता था, तो उन्होंने बताया तो समझ में आया. तो अब ये समझ में आया कि जो इसको ADHD की दवाई इंट्रायूट्राइन लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा था. अच्छा एक चीज़ और, इंट्रायूट्राइन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द केस ऑफ ADHD. व्हाई? ADHD की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? अगर आप देखें, अगर अच्छी बुक्स पढ़ेंगे ADHD को, तो ADHD इज लाइक अ हंटर सिंड्रोम. जब हम पहले क्या होता था, जब व्हेन वी वर इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ सर्वाइवल, जब जंगल में लोग सर्वाइव करते थे, तो दे वुड रिस्क लॉट ऑफ थिंग्स टू सर्वाइव.
they would impulsively do a lot of things to survive. So ADHD is something similar to that, where our animal brain is more developed than the cerebral brain. We all know there are three parts of the brain. One is the animal brain, the pons is the medulla. Animal क्या करता है? Animal क्या चाहिए? सोना, खाना, पीना, reproduction. वो सब medulla pons देखते हैं. ठीक है? Breathing center, appetite center, सारे medulla pons में. Then फिर आता है coordination center, जो cerebral, जब brain develop हुआ, तो cerebellar function develop हुआ, coordination. और फिर आया the most dangerous animal, human. cerebral cortex develop हुआ. फिर अपने इंटेलेक्ट यूज़ करने लग गया, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को यूज़ करने लग गया. तो जो ADHD के केसेस है ना, वो लोअर ब्रेन के एनिमल, उसमें लोअर ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है. उसके लिए सिर्फ वो कोई भी आप उसकी एक्टिविटी में कोई रैशनैलिटी नहीं देखेंगे आप. कोई बहुत उसके एक्टिविटी में बहुत लॉजिक सेंस नहीं देखेंगे, बट सर्वाइवल के सारे फीचर्स देखेंगे. तो एनीवे, तो दिस नेक्स्ट, तो इसकी दो चीज़ें हमारे को फिर इम्पोर्टेंट मिली. एक तो जनरल पैथोलॉजिकल जनरल था इसका एसिमेट्री, बिकॉज एसिमेट्री एक पार्ट की नहीं थी. द एंटायर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर वाज एसिमेट्रिकल. सो आई टुक दिस एज अ पैथोलॉजिकल जनरल, राइट. एंड सेकंड इज दैट ही हैड अ वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हिज दादाजी, ग्रेट दादाजी एंड द फादर. ऑन द बेस ऑफ दीस टू इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स आई प्रिस्क्राइब सिफ्लानिन. This is we're still following up this case, and this child is now almost we just passed 12 this time. This was a very he has become so still in his behavior, and obviously mainly the syphilis, we have given certain more remedies after that depending upon the different situations, but the medicine which helped him the most was syphilis. Now why syphilis? अगर आप syphilis को देखेंगे, corpus callosum को पढ़ेंगे, अगर so what is corpus callosum? Corpus striatum, not callosum. Corpus striatum क्या है? अगर this a union between two hemispheres of the brain, right? It's a bonding. Syphilis की पैथोलॉजी इस बॉन्डिंग पे वर्क है. क्यों क्लेफ्ट लिप आता है syphilis में? सेंट्रल पैथोलॉजी है. क्यों क्लेफ्ट पैलेट आता है syphilis में? सेंट्रल पैथोलॉजी है. जो सेंट्रल लाइन की पैथोलॉजीज डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बॉन्डिंग. यहाँ तक कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर फादर मदर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूरिंग इंट्रा-यूट्राइन लाइफ, सेंट्रल एक्सेस बच्चे को क्या मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल, 50% फादर 50% मदर, तो दोनों का एक यूनियन होना चाहिए, और वो यूनियन ही डिस्टर्ब हो गया. एट द पॉइंट ऑफ यूनियन अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है लीडिंग टू एसिमेट्री, दैट इज सिफिलिस. आप पूरी मटीरियल मेडिकल देख लीजिए, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और ऑल सेंट्रल पैथोलॉजीज which are nothing but the malunion. आपको वहाँ पे पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट जरूर मिलेगा. Those two things would be parents and father and mother should be contributing equally, but you will find lot of discord, lot of variations between the two, and more the variation, stronger would be the prescription of syphilis. Right? So on the basis of this we give syphilis. The patient is doing much better, as I said, and he's doing well in school also, and he does come for some one thing or the other complaint, and is still following. Next please. This was another case. This was a case again of a vitiligo. अगर आप पेशेंट को देखें, इस पेशेंट को आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स नजर आएंगे. मैंने नीचे लिखा भी है जो ऑब्जर्वेशन पे कि दिस पेशेंट हैड, एक तो पाउटिंग लिप, इसकी लिप देखेंगे तो स्लाइटली पाउटिंग लिप, एंड सेकंड थिंग इसकी जो विटिलिगो की पैथोलॉजी डेवलप हो रही है वो एक लीनियर पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, समथिंग लाइक अ लाइन, like it is not a patch, it's not a rounded patch, it's a kind of a linear line in which it is progressing. So this was important for us when this patient came to us. Next please. इसी बात को एक important बात उसने बताई मुझे कि मेरे को जो सर दर्द होता है, now this is important, जो हैनमैन लिखता है ना, most significant points in the whole history of chronic disease, कि मेरे को जब सर दर्द होता है मेरे को यहाँ दर्द होता है. Central pathology, linear, no other remedy in materia medica has it other than syphilis. Linear pathologies आपको मिले
Linear pathology means where you don't expect linearity to be there, right? It's not that आप herpes में syphilinum दे देंगे, because herpes is a it's a neuron nerve, जहाँ nerve distribution है वहीं vesicle होगा ना, तो nerve distribution का linear तो linear आ सकता है, कोई problem नहीं, तो वहाँ syphilinum नहीं बन जाएगा. We don't expect that thing to happen. अगर linear pathology का अगर centrally, if there are central pathologies, then the only medicine, your entire material medical is syphilis. So, on the basis of this, as well as a strong family history of alcoholism, we gave him syphilis. Next please. So the facial characteristics, linear tendencies or linear headache, family history of alcoholism. Facial characteristics, I told you two things. One is the pouting lip. अच्छा अगर आप syphilis पढ़ेंगे, syphilis अपने में ही एक syphilinum पढ़ने के लिए पहले syphilis पढ़ना चाहिए. जो word syphilis आया ना, वो actually एक cowboy था syphilis के नाम से. He was the first one who gave the characteristics of उसने एक अपनी poem लिखी syphilis ने, जिसमें उसने एक syphilitic patient के characteristics लिख डाले. वो डॉक्टर नहीं था, उसने तो सिर्फ symptoms लिख डाले. बाद में जब ह्यूमर करके एक वेल नोन फिजिशियन था, उसने जब बात पढ़ी तो उसने कहा ये तो जिस शेफर्ड ने सिफिलिस लिखा है, पोएम लिखी है, ये तो एक एक्चुअली सिफिलिटिक पेशेंट के बारे में लिखी है और उसकी मेमोरी में वो डिजीज सिफिलिस बन गई. तो वो जो उसने पोएम में लिखा वो काफ़ी कुछ आपकी मटीरियल मेडिकल में आपको मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आप उन सिम्टम को देखकर सिफिलिनम ही दे दो, बट वो सिफिलिटिक टेंडेंसीज हैं जो सिफिलिनम कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एज लॉन्ग एज concomitant like linear headache मिल जाए, right? So on the next please. So this was after pre and post treatment. We gave him syphilinum over a period of time and then all these patches disappeared. Next please. इस तरह बहुत सारे आपको मटीरियल मेडिका में मिलेंगी ऑब्जर्वेशंस. ये तो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस लिख डाले हैं कि जहाँ पे मैं एक दो बातें आपको ज़रूर क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. विच हम सब जानते हैं ब्राइनिया एज अ रेमेडी कि ब्राइनिया में ड्राई कॉफ होता है, वी ऑन रीड मटीरियल. बट अगर आपको एक चीज़ जानते हैं, दिस इज माई फेवरेट इंडिकेशन क्यों वर्ड कर रहा हूँ. अफोरिज्म, अगर आप अफोरिज्म 3 पढ़ेंगे तो हैनिमैन जब लिखता है ना नॉलेज ऑफ, उसने लिखा जो प्री रिक्विजिट्स ऑफ फिजिशियन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है नॉलेज ऑफ डिजीज कॉमा इंडिकेशन. ऐसा क्यों लिखा? इसने जब अफोरिज्म 3 पढ़ते हैं उसने लिखा जो कि व्हाट ऑल नॉलेज वी शुड हैव. हम पढ़ते हैं ना अफोरिज्म 3 तो सब बच्चे कोट करते रहते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ द knowledge of physician, knowledge of disease. If he knows what is to be cured in disease, that to say every individual case of disease, bracket knowledge of disease, comma indication. क्यों लिखा है? knowledge of disease लिख के छोड़ देता. knowledge of disease, comma indication means अगर आपको ये पता है knowledge of disease is XYZ कोई भी बीमारी, उस बीमारी में क्या वो रस्टॉक्स वाली सिम्टम है, क्या वो सीना वाली सिम्टम है, वो है इंडिकेशन. नॉलेज ऑफ डिजीज तो जेनरिक टर्म हो गया, टाइफाइड हो गया, जो भी हो गया, उसको इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज कौन करेगा, कॉमा इंडिकेशन. क्या ये खांसी सीना वाली खांसी है, ये खांसी क्या ब्राइनिया वाली खांसी है, ये खांसी क्या फॉस्फोरस वाली खांसी है, ये उसकी इंडिकेशन. और अफोरिज्म 153 में फिर इलॉबरेट करता है इंडिकेशन होता क्या करेक्टरिस्टिक मिलेंगे आपको इंडिकेशन पे. तो इसमें वो बताता है स्ट्राइकिंग से मिला, वो बात विल डिस्कस लेटर. तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको ये इंडिकेशन मिल जाए, जैसे कि उसमें ब्राइनिया की बात करें, मैं ब्राइनिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर सेम ब्राइनिया जैसा सिम्टम को रैटलिंग कॉफ में मिल जाए, पेशेंट खांस रहा है, बलगम वाली खांसी है और खांसते टाइम वो छाती को पकड़ रहा है या एक चेस्ट को पकड़ रहा है, लाइक अ ब्राइनिया पेशेंट, देन थिंक ऑफ लेटरल सल्फर. दिस इज अ गोल्डन पॉइंट विच दिस जस्ट लाइक. एक और मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपको कोई पेशेंट अगर आपको बोले कि और ली एन क्लार्क में लिखा भी है जो मैं सिम्टम आपको बता रहा हूँ, ली एन क्लार्क बड़ी क्लासिकल लिटरेचर बुक है फॉर कॉफ, कि अगर पेशेंट बोले कि मेरे से जैसे वो आपको पहली चीज़ बोले कि मेरे को खांसी होती है, टेंडेंसी टू कॉफ है, बट मेरा एक खांसी का खास सिम्टम है
मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं बोलते ही खांसी शुरू हो जाएगी। मेरी जब भी क्रॉनिक कॉफ होती है, मेरे साथ एक सिम्टम है कि जैसे मैं बोलना तो मैं इसलिए डेजिस्ट फ्रॉम स्पीकिंग, कॉफ ऑन एवरी अटेम्प्ट टू स्पीक, डेजिस्ट फ्रॉम स्पीकिंग। एक ही दवाई है, एक्टिव। आप लियन क्लार्क में देख लीजिएगा, प्रूविंग का सिम्टम है। जितने भी प्रूविंग के सिम्टम है ना, दे आर गोल्ड। वो आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, वो लिटरेचर में है, उसे बस हमें यूज करना है फॉर आवर प्रिस्क्राइबिंग। तो इसी तरह अगर आपको कॉफ के साथ इफ यू गेट यूफ्रेशिया, नेट्रिम्यूर एंड फेरम, 3 वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज। अगर पेशेंट होता है कि मुझे बहुत लैक्रिमेशन होता है, सो गो नेक्स्ट प्लीज। Okay, so next, there's another aphorism which I would like to quote. I hope we are there. We all of you are there with me. सब सर है ना So, सर कितना टाइम है? सर आराम से आप चलिए, अभी तो काफ़ी टाइम है। So, आप कभी क्या होता है, हमें जैसे हमें सिखाया जाता है, जैसे कोई भी ड्रग ले लीजिए, फ्लोरिक एसिड ले लीजिए या पल्सटिला ले लीजिए, हमें सिखाया जाता है यही बताया जाता है ना, है ना, बीपी सेंसिटिव, माइल्ड टेम्पर्ड रेमेडी, ये ना, these are the psychotic phase of the drug। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोई आपको पैथोलॉजी सिफिलिटिक जा रही है, कोई डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, उसमें वीपिंग डिस्पोजिशन में कभी प्रिस्क्राइब मत कीजिए, तो जितना मार्क लीजिए। बिकॉज आपको अगर जैसे कुछ काटना है तो आपको आरी यूज़ करनी पड़ेगी ना, आपको चाकू तो नहीं, आपको हार्ड चीज़ चाकू तो नहीं काम आएगा। सिमिलरली जैसे जिस पैथोलॉजी होती है वैसे उसी तरह का सिम्टम हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर प्रिस्क्राइबिंग। तो जो अगर तो सिफिलिटिक पैथोलॉजी है, डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, उसमें साइकोटिक सिम्टम नहीं काम आएगा। तो इसीलिए एक बात हैनन ने लिखी है कि हमारे को जो इंडिकेशन हम पढ़ते हैं, हम एक यूजुअल इंडिकेशन पढ़ते हैं। यूजुअल इंडिकेशन डजंट मीन दे आर रॉन्ग। अगर आपको एक्यूट फेज में वीपिंग है तो क्यों नहीं दोगे पल्स, क्योंकि वो सॉरी फेज में आया आपके पास, सडन ऑनसेट आया, क्यों नहीं दोगे? बट वेयर व्हाट हैज टू बी यूज्ड इज द मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो मैं आपको बताई दी नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर्म इंडिकेशन ऑफ ऑर्गन 3। नेक्स्ट प्लीज। अब इस अफॉर्जन 3 को अफॉर्जन 153 में इलॉबरेट करना कि इंडिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। मैंने ये तो कह दिया कि आपको हर डिजीज में एक इंडिकेशन ढूंढना है, किस ड्रग का इंडिकेशन, बस उस ड्रग का इंडिकेशन होगा किस तरह का। तो या तो स्ट्राइकिंग होगा मीन इंटेंस, राइट, उसकी इंटेंसिटी से पता लगेगा, या वो सिंगुलर होगा जो कि हमें एनालिसिस से पता लगेगा। आई टेल यू व्हाट इज एनालिसिस। या वो अनकॉमन होगा जो कि उसे एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से पता लगेगा, या वो पिक्यूलियर होगा जो उसके मैथमेटिक पैटर्न से पता लगेगा। एक एग्जांपल ले लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। प्लीज मैं छोटा सा एग्जांपल लिया है पहले टू कम टू माय पॉइंट कि हम वी शुड नॉट बी स्टीरियोटाइप्ड इन अंडर। हम जैसे फॉर एग्जांपल कैमोमिला हम पढ़ते हैं ऑल ऑफ अस कि कैमोमिला इज एक्सट्रीमली स्नैपिश, अनसिविल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इरिटेबिलिटी, वर्स्ट बाय हीट, वर्स्ट इवनिंग, वन चीक हॉट, अदर चीक। ये पढ़ते हैं ना हम पहले के जो मास्टर्स हुआ करते थे, जो मटीरियल मेडिकल थे, वो प्रूविंग बहुत तरह पढ़ते थे। वो हम क्या पढ़ते हैं, हम कीनोट्स पढ़ते हैं। कीनोट प्रूविंग है क्या? नहीं, कीनोट तो जिस्ट, उस मटीरियल मेडिकल की जिस्ट। तो एक ना दो लोगों का नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, लिपे और गर्नसे, लिपे और यूरेन से विसलॉफ, सर लिपे एंड विसलॉफ। ये दो बड़े मास्टर्स प्रिस्क्राइबर हुआ करते हैं। हम पढ़िए ना डॉल्फ लिपे की एक उसकी कीनोट वाली बुक भी है,
characteristics of material. तो Veselov is one of the translators of Oppenheimer. तो ये अपन ने बात कर रहे थे, तो लिपिन ने टेस्ट करने के लिए ऐसे ही Veselov ने पूछा कि I have a patient, उसको he has a very funny sensation that he is walking as if he is walking at the end of the bone. वो चल रहा है तो ऐसे उसके पाँव पे नहीं चल रहा, वो he is walking at the end of the bone. He was testing. So और Veselov was testing him or Lippi was testing, I don't know. तो उसने कहा कि नहीं, yes I got the, this is chamomile, and the same symptom is there in the proving of chamomile, and this is what next is. मैं आपको बात क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं रेमेडी को, कि दिस रेमेडी हैज टू बी इरिटेबल. अच्छा, फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि एलन कीनोट में लिखा हुआ है मेंटल कामनेस कॉन्ट्राइंडिकेट्स कैमोमिला, लिखा है ना. तो यहाँ पे बात ही हो रही है कि अगर तो उसका ऑपोजिट सिम्टम है जो उसका कीनोट है, देन इट कॉन्ट्राइंडिकेट्स. बट अगर सिम्टम की बात ही नहीं हो रही है, इरिटेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही, तो क्या हमें कैन कैमोमिला बी गिवन इन अ पेशेंट हु इज नॉट इरिटेबल, नॉट इवन मेंटली काम. मेंटली काम बिकम्स द ऑपोजिट कीनोट ऑफ. इन आपको फीवर है 102, 104, 103, 104, आप उसमें भी बच्चा आराम से बैठा है, आराम से खेल रहा है, तो आप क्या सोचते हो? आर्मी का सोचते हो, ओपीएम सोचते हो? फीवर 101, बच्चे ने हाई तौबा मचा दी, आप सोचते हो क्या होना? सोचते हो स्नैपिश हो गए. तो स्टैनमैन से इतना कह रहा है कि अगर तो 102 में भी मेंटल कामनेस है तो दैट कॉन्ट्राइंडिकेट्स कैमोमिला. 210 अफोर्डर में भी वो यही बात कहता है कि डिस्पोजिशन, जो मेंटल डिस्पोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी द अदर एक्सट्रीम. बट दैट डजंट मीन कि अगर वीपी नहीं है तो पल्सुला नहीं हो सकता, और इरिटेबल नहीं है तो उसमें हम कैमोमिला सोच नहीं सकते. कैमोमिला तभी सोचते हैं जब इरिटेबल. ये प्रूविंग की बात हैनेमन ने, लिपि ने, बोर्नगाउजन ने, बहुत अलग अलग जगह पे एक आर्टिकल है बोर्नगाउजन का जो कि विच इज वर्थ रीडिंग, इज द 3 रूल्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग. तो उसमें एक बात बहुत क्लियरली लिखता है, वो बड़ा आर्टिकल भी नहीं है, अच्छे पेजेस पर, तो बहुत अच्छी बात लिखता है कि कई बार हम जो रेमेडीज है ना, वो अगर जैसे एक रेमेडी में प्रूविंग सिम्टम है ABC और वो हमारे को पेशेंट मिल गया, तो उसमें वो कहता है कि अगर आपको जो ABC मिल गया, आप उसकी बेसिस पे प्रिस्क्राइब करो रादर देन ढूंढना जो मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है, क्योंकि यू डोंट हैव टू मैच द रेमेडी टू द पेशेंट, यू हैव टू मैच पेशेंट टू द रेमेडी. जो पेशेंट की सिम्टम है उसी को तो आप ढूंढोगे, या रेमेडी भी ढूंढोगे पेशेंट में. देखो, जब प्रूविंग हुई, मैं ये कई बार क्लास में बताता हूँ, जब प्रूविंग हुई तो कैमोमिला या कोई भी ब्राइनिया एक ने प्रूव कर दी क्या, किसी ने कुछ सिम्टम दिए, किसी ने कुछ सिम्टम दिए, किसी ने कुछ. हमारा पेशेंट भी ऐसे देते हैं, वो कोई एक ड्रग फ्रैगमेंट ऑफ ड्रग देगा, कोई दूसरा फ्रैगमेंट ऑफ ड्रग देगा. इसी को हैनेमन ने एंटी टाइप का कंसेप्ट दिया है. 154 पढ़ते हैं तो उसमें कंसेप्ट आता है व्हाट यू हैव टू मैच इज द एंटी टाइप ऑफ द रेमेडी. मींस रेमेडी का वो हिस्सा जो पेशेंट से मिलता है, रादर देन नॉट द एंटायर रेमेडी. क्योंकि जब एक प्रूवर पूरी रेमेडी नहीं दे सकता तो एक पेशेंट पूरी रेमेडी कैसे दे देगा? So whatever you're getting with the patient has to be considered as totality and matched with the drug, rather than matching the drug with the patient. Right? Next, please. So this was a case of a thalassemia child. Thalassemia major we all know. अगर pathology आप जानते हैं, they have a very limited lifespan. They have thalassemia क्यों limited lifespan होती है? Because जो thalassemia की पैथोलॉजी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सो फास्ट हेमोलिटिक प्रोसेस बिकॉज ऑफ द जेनेटिक आइसोमर्स. जो हीमोग्लोबिनोपैथीज आइसोमर गलत बन जाता है तो इस वजह से आरबीसी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो क्योंकि बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन फेरेटिन लेवल्स बढ़ता रहता है. आयरन फेरेटिन लेवल्स बढ़ने की वजह से देन बिकॉज देयर सो मच ऑफ आयरन ओवरलोड, then the patient start getting deposited in the vital organs.
then they start getting the vital organs, vital organs start deteriorating to the extent that by the age of 18, 20 or 22 years, these children, because of the iron overload, they ultimately die. Right? So other than the complications of thalassemia major, thalassemia minor में तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Minor में आपको थोड़ा hemoglobin कम हुआ, 10 के ऊपर नहीं बढ़ेगा, 11 के ऊपर नहीं बढ़ेगा, you can live a life. Any child can live a life. It is the thalassemia major which is critical. Now this was a patient of thalassemia major. This case I also presented in the Liga conference. Thalassemia major में आज के टाइम में बहुत कम cases on record हैं who have survived beyond a given age. Because I told you, because this is a kind of a life-threatening critical illness. So because this patient also had thalassemia major, the findings were very similar: low hemoglobin, requiring different blood transfusion, so on and so forth. Shortness of breath, pallor, general feeling lethargy, all belong to thalassemia major. Next, please. There were two important findings which were very important for us. बजाने ही है डॉक्टर जॉर्जी के पास फैन है. फॉर 153 सिंगुलर क्या है? सिंगुलर एक स्ट्राइकिंग तो समझ में आता है, इंटेंस, जो हाई इंटेंस सिम्टम है, स्ट्राइकिंग इंटेंसिटी, राइट? फीवर आप बेलोना देते हो, रैपिडली राइजिंग फीवर, रेड चीक्स, ड्राई पाम्स, बिकॉज दैट्स इंटेंस. आप एलिमिना देते हो because the given with a soft shoe the patient is training so much, so that is intense. तो the striking होता है intensity. जो singular symptom होता है एक ऐसा symptom जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कर दे. सिंगुलर होता है ना कि हम कहते हैं ना ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं इसके सहारे में, जैसे फॉस्फोरस एग्जाम्पल, अगर आपको फॉस्फोरस समझना है तो आपको फॉस्फोरस से लाइट को समझना पड़ेगा, राइट? फॉस्फोरस की सारी पैथोलॉजी, इवन उसकी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व, आप उसके अगर डिफ्यूजनेस को पढ़ेंगे, लाइक ब्लड इज डिफ्यूज, फॉस्फोरस इज वेरी गुड रेमेडी फॉर. तो लाइट इज लाइवली, so therefore it is a very good remedy for metabolic organs like liver, adrenals. So उसकी singularity है phosphorus की is its light, fear of light, fear of thunderstorm, fear of discharge of energy, better by eating, better by sleep. Why better by sleep? Because that charges up the patient. तो ये phosphorus की singularity है. इसी तरह अगर आपको एक रेमेडी हम मटीरियल मेडिकल में पढ़ते हैं, थूजा में क्या पढ़ते हैं? हमें ये पढ़ा जाता है डिवीजन हिज बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्लास, इट इज ब्रिटल. नो, दिस इज नॉट अ लिटररी वर्ड व्हेन यू से दैट बॉडी, दिस इज एक्चुअली हैज लॉट ऑफ मीनिंग. अब कोई भी पेशेंट आपको ये नहीं बोलता कि मैं ग्लास का बना हूँ, वो इस रूब्रिक से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेजिलिटी. थ्यूजा की अगर आप पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, लाइफ एंड फ्रेजिलिटी. ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं ना, लाइफ कब आती है, बच्चे में लाइफ कब आती है? व्हेन इज द चाइल्ड लिविंग, फर्स्ट 3 months इट्स अ ऑर्गन मास, देन इट बिकम्स एंडाउड विद एनर्जी. तो थ्यूजा का अबॉर्शन 3rd month पे होगा जब लाइफ आती है. 3 to 4 3 am पढ़ते हैं एग्रीवेशन. 3 am एग्रीवेशन क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज 3 am इज अ ब्रह्म मुहूर्त. क्या है ब्रह्म मुहूर्त? क्या इज द बॉडी एंड द सोल. हम क्यों मेडिटेशन कहते हैं? मेडिटेशन शुड बी डन एट 3 to 4 am. That's a Brahm Muhurat. Because body and the soul are most distinctively disconnected at 3 to 4 am. So it is very easy for you to go up in higher in the spiritual realm if you are doing meditation at 3 to 4 am. That is what Thuja is also. तभी उसका एक रूब्रिक भी है, as a delusion, as a mind and body are, spirit and body are separated, right? So तो दो चीज़ें अगर थ्यूजा को समझनी है, उसकी फ्रेजिलिटी क्या होता है? फ्रेजिलिटी मतलब शीशे जैसा. तो फ्रेजिलिटी शीशे जैसा, उसका इमोशनली भी शीशे जैसा होगा. कुछ भी कह दिया बिखर गया, एक बार रूडली बोल दिया बिखर गया. इतना सेंसिटिव है कि जैसे ग्लास को आप कैसे हैंडल करते हो, यू हैंडल ग्लास की इसको ध्यान से रखना, इसमें कुछ क्रैश ना पड़ जाए, इसको ध्यान से रखना कि ये बड़ा फ्रेजाइल है. और फिजिकली भी फ्रेजाइल होगा. आप ग्लास को एक ऐसी जगह नहीं रखते जहाँ गिरने का डर हो. तो बच्चा भी यही था कि वो कहता था मैं आई डोंट वांट टू प्ले अ गेम जिसमें वो, देखो कुछ गेम्स ऐसी होती है जहाँ पे आपको गिरने का डर, फुटबॉल, खो खो वगैरह,
where you have a physical क्या मतलब physical assault के चांस ज़्यादा है, physical injury के चांस ज़्यादा है, he would never play that game. And again the mother also said कि इतना ही fragile, mother का word नहीं है fragile, ये तो मेरी understanding fragility. उन्होंने कहा इतना ही अगर ऐसे कुछ बोल भी देना तो बिखर जाता है, ये word था. इस बात को समझते हो, प्लस ये बात मुझे कैसे समझ में आई, क्योंकि मुझे एक सिम्टम बताया मदर ने. नेक्स्ट ये सिम्टम ये वाला बात पहले आई, उसके बाद मैंने उसकी फ्रेजिलिटी समझी. किसी मदर ने कहा इसको जो पसीना आता है ना वो टिपिकली लेफ्ट साइड ही आता है, वन साइडेड स्वेट में पल्सिटिला नक्सोमिका थूजा एंड दिस वन मोर रेमेडी देख लेना रेपर्टरी में. Most important remedies for one-sided stroke. On the basis of this, and then correlating it with fragility. क्योंकि पहला सिम्टम ये आया मेरे को मिला समझ में आया, क्योंकि ये तो क्लियर, ये तो झूठ, ये तो सामने नजर आ रहा है, वो तो इंटरप्रिटेशन है, वो तो एक इंटरप्रिटेशन है. बट जो एक चीज और, बॉडी नेवर लाइज. मैं आप सबसे एक चीज जरूर बोलूँगा, आप वो सिम्टम से एंट्री करें जो जिसमें इंटरप्रिटेशन कम से कम. बॉडी झूठ नहीं बोल सकती. जो अगर आपके हाथ पे लोकेशन है तो लोकेशन है, साफ है. जो चीज़ कोई सिम्टम है तो फिजिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होती पड़ेगी, राइट. तो एक तो ध्यान रखिए, योर बॉडी नेवर लाइज, सो यू एंटर विद द सिम्टम विच इज सॉलिड, विच इन्वॉल्व्स लीस्ट इंटरप्रिटेशन. उसके बाद अगर आपको उसकी पिक्चर कवर करते हुए आपको इंटरप्रिटेट करते हैं तो देन यू आर लॉजिकली जस्टिफाइड, राइट. तो ये चीज़ को ध्यान में देते हुए, उसकी फ्रेजिलिटी को ध्यान देते हुए, आई गिव हिम थूजा. नेक्स्ट प्लीज. दिस पेशेंट इज अभी बहुत टाइम पुराना पेशेंट है. दिस वी फॉलोड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. फेरेट व्हेन ही केम टू अस, फेरेटिन मैंने आपको कहा आयरन ओवरलोड से बढ़ता रहता है. व्हेन ही केम टू द आयरन ओवरलोड वाज 5166. देन ओवर अ पीरियड टाइम दिस केम टू 51. दिस वाज डिस्पाइट ऑफ द डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स. दिस पेशेंट इज स्टिल टेकिंग ट्रांसफ्यूजन्स. This I am talking of 2017-18. इसका मैंने फॉलोअप नहीं किया. This we can जब तक इसको फॉलोअप किया था दिस पेशेंट को, तो दिस पेशेंट had reduced the frequency of transfusion and the simultaneously the ferritin levels had also come down, which doesn't happen because you have a iron overload. So this thuja, why I'm saying so is that if you can, in cases like thalassemia major, if you can prolong the survival of the patient with minimum blood transfusions, I think of the what Hahnemann writes in Aforzin 2 is very much you're on board for that. क्योंकि उसने वहाँ पे एक बात आइडियल की बात कही है कि आइडियल एक्यूट का कैसा होना चाहिए, आइडियल क्रॉनिक का कैसा होना चाहिए. Right? Next please. Now this was a case of a PCOD who had all symptoms of PCOD. She was a case of primary infertility with scanty irregular menses, severe dysmenorrhea with pain abdomen. Next please. This was पहले सुनो. ये हमारे कॉलेज का ही उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो जिसमें PCOD के सिम्टम्स आए थे. तो यहाँ पे मैं गलती ही बताता हूँ आपको. तो पूछा कि कैसे शुरू हुआ, हाउ डिड द मेंसेस स्टार्ट. शी आल्सो हैड अ हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ATT ले चुकी थी. तो ये उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है. तो द ओवरीज वर एनलार्ज्ड. PCOS का टिपिकल केस, सो विद ऑल सिम्टम्स, हिर्सुटिज्म, स्कैंटी मेंसेस. तो उसने कहा कि मेरे को जब पहली बार हुआ था तो मैं आई हैड अ एपिसोड ऑफ, मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मेरी मदर ने कुछ बोला था. एंड द फर्स्ट रेमेडी दैट स्टक मी वाज cephalosporin, indignation, cephalosporin, ailment from, it did not work, right? Because as I said, 206 footnote again, right? कि आपको अगर अच्छा एक बात और, that doesn't mean कि indignation जहाँ मिले आपको वहाँ स्टेफिसेग्रिया हो ही नहीं सकता. इंडिग्नेशन विथ अ डिग्निफाइड पर्सनालिटी. अगर किसी जैसे मैंने आपको डांट दिया, ठीक है, आपको डांट दिया, आपको बुरा लगा उस मोमेंट पे, बट आप बहुत डिग्निफाइड नहीं है, मतलब कि आपकी डिग्निटी बहुत मायने नहीं रखती. आपको बुरा लगा, आपको डांटा, आप ठीक हो, आप डिग्निफाइड हैं. You say what is black and white is white. मैं झूठ नहीं बोल सकता.
मेरे डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको डाटा तो स्टेप्स एरिया उसमें पैथोलॉजी आ सकती है, मगर इसमें आपने क्या देखा अदर देन द एक्साइटिंग कॉज, यू आल्सो सॉ द अंडरलाइंग सेंसिटिविटी। तो क्रॉनिक डिजीज में अंडरलाइंग सेंसिटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। क्रॉनिक डिजीज में जो कहते हैं ना होल पॉइंट इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज, आपको सेंसिटिविटी देखनी कि वेदर उसके साथ जो हुआ वो अब्सॉर्ब करने लायक था भी नहीं, था कि नहीं था, राइट। तो एनीवे दिस डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट, then again as I said the most significant point of the whole history of chronic disease, right? Again मैं जैसे आपको CPR के एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, CPR को हम बहुत क्रॉसली मिसअंडरस्टैंड करते हैं एज अ इंडिफरेंट रेमेडी, व्हाइल इट्स अ वेरी सेंसिटिव। अगर आप गाइड है, इट्स अ वेरी, और एक ये बुक और एक फिलिप बेले की पर्सनालिटी प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको CPR के डिफरेंट शेड्स उसमें लिखे हैं। What were the different shades of CPR? It is one of the most sensitive, creative, caring remedies in its earliest phase of development. Only when this craving or this natural hunger for love, for affection is not satisfied, it goes into indifference. Similarly, Moxol is very much like strepsirrhea. अगर आप Moxol को पढ़ेंगे एक बार तो it is very much like strepsirrhea. Anyway, so the point was, इस केस में हमारे को तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिली which was something very significant for CPR. Number one, and this again I consider to be a golden point, अगर आप बोगर साइनॉप्टिक की एक ऐसी बुक है जो हम सबको पढ़नी चाहिए। उसने बोगर was known for his logical brevity, लिखता कम था, 4 लाइन लिखता था। जैसे उसने आर्निका में लिखा है पेनफुल ऑफेंसिव रेमेडी, यही पूरी आर्निका। पेनफुल कैसा? पेन, आर्निका का जो पेन है, इसका पेन इज नॉट द इंजरी पेन अलोन, इट इज अ पेन जो कि पेशेंट ने, जैसे पेनफुल सोल होता है ना कि मुझे इतना तकलीफ हुई है इस बात से कि उसने उसको ग्रहण कर लिया अंदर। डिनाइल मोड, साइकोलॉजी में एक डिफरेंस होता है डिनाइल, हम पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी, रिप्रेशन, सप्रेशन, एक साइकोलॉजी का डिफरेंस होता है डिनाइल। आर्निका इज अ रेमेडी फॉर पेन इन डिनाइल मोड। तभी उसमें सिम्टम आता है doesn't want to be touched. क्यों? The moment you touch him, the underlying pain will come up. Something similar to post traumatic stress disorder. आप post traumatic stress disorder को पढ़िए, आप आर्निका पढ़िए, आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि उसका पेन फिजिकल पेन नहीं है सिर्फ आर्निका का। तभी बोरिक एक लाइन लिखता है for the ill effects of psychical trauma. It is not just physical trauma which is आर्निका, वो तो है, फिजिकल ट्रॉमा तो उसका है, बट उसका हायर लेवल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग इज साइकिकल ट्रॉमा। तो उसको बोगर ने लिखा पेनफुल। सेकंड लिखा उसने ऑफेंसिवनेस। ऑफेंसिवनेस इज व्हाट? सेप्सिस, डिजेनरेशन होता है तो ऑफेंसिवनेस। तो इसलिए आर्निका इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सेप्सिस। उसके डिस्चार्जेस ऑफेंसिव हैं, वो उसका डिलीरियम बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि उसके सेप्सिस के सिम्टम बहुत मार्क हैं। उसका DIC का जो डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन, अगर आपको नहीं समझ में आता कोई रेमेडी, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इज ईदर फास्फोरस और आर्निका, राइट। सो इट इज, तो उसे दो वर्ड्स में पूरी आर्निका ड्रग, उसे वर्ड इज शुरुआत ऐसी की है, पेनफुल ऑफेंसिव रेमेडी, दैट्स आर्निका। तो इसी तरह उसने जो उसकी पैथोलॉजी थी CPR की, तो उसमें दो वर्ड्स उसने बहुत खास लिखे हैं, असेंडिंग। जो CPR की पैथोलॉजी में यू विल थ्रू आउट फाइंड असेंडिंग डायरेक्शन ऑफ सिम्पटम्स। अगर आपको पेशेंट बोलता है कि मुझे फ्लशेस हीट होते हैं विच गोज फ्रॉम माय यूट्राइन ऑर्गन, मुझे लगता है ऊपर को आ रहा है, दैट हॉट फ्लशेस इज CPR, प्रूविंग में लिखी हुई लाइन। सिमिलरली असेंडिंग कोल्ड, मेरे को पहले पेशेंट ने बोला पहले गले से मुझे हमेशा जब भी खांसी जुकाम होता है, बलगम बुखार होता है, तो मुझे पहले गले को अटैक करता है, फिर मुझे उसके बाद जुकाम हो जाता है, असेंडिंग कोल्ड, राइट। तो मेरे को जब भी इंटरनल पेन होगा तो मुझे पहले इट विल कम फ्रॉम द हाइपोगैस्ट्रियम अप टू द एपिगैस्ट्रियम, असेंडिंग डायरेक्शन ऑफ सिम्पटम्स। और उसी के साथ अगर मिल जाए डायरिया, दिस इज अगर हम जैसे बुक बाय संकरन, P. संकरन की बुक है, नॉट दिस संकरन, राजन संकरन के फादर, P. संकरन, एलिमेंट्स ऑफ होम्योपैथी। ना इट्स सच अ ब्यूटीफुल बुक, एलिमेंट्स ऑफ होम्योपैथी। उसने सिर्फ अपने केसेस दे रखे हैं,
उसने कुछ ज़्यादा बट उसने एक केस में बता रखा है कि अगर आपको किसी पेशेंट में मिलता है कि किसी पेशेंट में रेकरेंट टेंडेंसी तो मिलती है टू बी अफेक्टेड बाय हॉट मिल्क, ये हमने 2 केस बताए हुए हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जहाँ पे पेशेंट की उसको वॉमिटिंग, उसने अपने केस में बताया कि वॉमिटिंग ऑफेंसिव मिले एंड विद टेंडेंसी टू इनटॉलरेंस ऑफ हॉट मिल्क, तो उसने CPA दे रखा है। तो इन्हीं चीज़ों को दोनों को बातों में देखते हुए देन आई प्रिस्क्राइब द CPA। नेक्स्ट प्लीज। ये तो एलिमेंट्स ऑफ वॉमिटिंग में आपको बताई गई जहाँ पे कॉलर दिस इज डन इन अ हॉस्पिटल, वही रखा है। ओके कॉलर द सिस्टर बिकम्स कॉलर। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस इज अ नॉर्मल सिस्ट, देयर वाज नो सिस्ट, दिस पेशेंट conceived and I still remember that this was one of the earliest cases that in which I could do something about a case of infertility. This was in the very early part of my professional career. Next please. Next please. Okay. So this was a next please. Sir. Next please. Next please. Next please. Next please. Next please. नेक्स्ट प्लीज थोड़ा से कैमरा किलकिले का छोड़ो। एक बात बता दूँ किलकिले का आपकी, जो कि बहुत कभी कभी काम आएगी आपको, ह्यूजेस की बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको क्यों रेफरेंस देता आ रहा हूँ साथ बुक का कि अगर मैंने कुछ किया है अगर प्रैक्टिकली, तो वो मैंने किसी बुक से पढ़कर या मुझे कोई बुक का, मेरे को अपना कुछ नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है। ये तो बस आपको पैथोलॉजी समझ के, मटीरियल समझ के आप उसे अप्लाई करो, बस। इट्स एज सिंपल। मैंने कहा ना पहली बात, कीप योर सिस्टम सिंपल। तो किलकिले ताप में एक रीजन ने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस टू ट्रीट, जिसमें सबसे ज़्यादा फेलियर मुझे लगता है वो होते हैं मेरे को में, इज गॉल स्टोन। बिलरी कॉलिक, बिलरी स्टोन, गॉल स्टोन बड़े मुश्किल लगते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं दिस इज समथिंग आई फील मेनी टाइम्स, बट बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था। और ये मैं पहली बार सोच के भी हैरान हो गया कि मैंने कहता तो पेशेंट की क्या होता है, कहीं ना पेशेंट आपको हौसला देता है। आप तो सोचते हो कि नहीं ये तो आप मत करो, क्योंकि आप जाओ सर्जरी कराओ। तो पेशेंट कहता है कि नहीं मेरी सर्जरी हो चुकी है मेरी। मैं एक केस दिखाऊंगा आपको अगर टाइम मिला तो। दिस वाज अ केस ऑफ सबलक्सेशन, सर्वाइकल सबलक्सेशन। ये मैंने WHT कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था। जो देख रहा हूँ वीडियो, अगर वीडियो चला तो वीडियो ही दिखा दूँगा आपको। तो दिस वाज चाइल्ड ऑफ अ 3-year-old सबलक्सेशन। सर्वाइकल सबलक्सेशन क्या है, जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, जो कि जो एटलस होता है ना, एटलस पे ओडोंटॉइड प्रोसेस फिक्स होता है। तो वो अगर थोड़ा भी निकल गया तो डेथ है। और सबलक्सेशन में ऑलरेडी थोड़ा निकला होता है। सबलक्सेशन में ऑलरेडी सबलक्सेशन में टिश्यूज अभी बिकम फ्रेजाइल, वीक हो गई, तो वो हैंगिंग से डेथ कैसे होती है? इज बिकॉज ऑफ दिस द ओडोंटॉइड प्रोसेस सडनली कम्स आउट ऑफ द एक्सिस एंड द एटलस, तो देयरफॉर डेथ हो जाती है। तो इसी तरह एक पेशेंट था, मैं बात कहाँ से बात छिड़ी कि कई बार पेशेंट आपको कहता है कि आप ट्राई करो, आप नहीं विलिंग होते, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो फंस गया तो फंस जाएंगे। तो एक पेशेंट था, तो इसमें उसको सर्वाइकल सबलक्सेशन था ऑफ द ओडोंटॉइड प्रोसेस, एंड उस पेशेंट ने क्यों में से ट्रीटमेंट लिया, बिकॉज उसको एम्स की डेट नहीं मिली सर्जरी की। और वो सर्जरी में भी बहुत एट द बैक ऑफ द माइंड इट वाज एक वो बच्ची एक बार गिर जाती और तो हो जाना था। तो आई वाज आल्सो वेरी नॉट वेरी कीन ऑफ टेकिंग दैट केस, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बच्ची का ठीक ही हो गया पूरा। आर्सेनिक आई गिव हर आर्सेनिक, क्यों आर्सेनिक दी वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट वो ठीक हो गया। इस तरह किलकिले ताप, अगर आपको गॉल स्टोन का केस मिले, गॉल स्टोन कॉलिक, उसको टेंडेंसी टू कॉलिक रहा हो या फिर गॉल स्टोन का केस मिले, और आपको कोई इंडिकेशन किसी चीज़ का नाम समझ में आ रहा हो, जो हम पढ़ते हैं ना, हम गॉल स्टोन का बड़ा पैथोलॉजी बुक में क्या पढ़ते हैं, फैट फेयर फ्लबी, ये पढ़ते हैं। तो रिचर्ड ह्यूजेस ने इसी बात को लेके लिया है कि अगर आपको गॉल स्टोन का केस कुछ और नहीं मिला, नो इंडिकेशन, then you try किलकिले ताप 13 repeated doses. Now why I'm telling this is what exactly I did with my with the case of person। और अभी recently एक patient था, देखा अगर वो भी टाइम मिला तो आखिरी में इट्स अ वीडियो, वो भी एक वीडियो है, उसको ब्राइनिया दिया था गॉल स्टोन में, एंड यू वोंट बिलीव एज आई डिडंट बिलीव कि उस पेशेंट का CBD में स्टोन था।
CBD सिस्टम कैसे कोई अवॉइड कर सकता है? वो तो ERCP इज द मोस्ट सिंपल थिंग यू डू, दैट केम आउट ऑफ CBD। तो CBD से ही वो उसके एम्पुला से निकल के उसके इंटेस्टाइन में आ गया, just because patient was not willing to surgery, not because I had confidence, no. So neither I am claiming कि आप ब्राइन हर केस में दे दो, या बट मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी केस में फंसो तो रिचर्ड इंग्लिश की लाइन है कि because of the lithymic tendency of calcarea and the constitution of calcarea, you have a high chance that you should be able to do something about a calcarea case in Boston. Next please. ये उसकी जो रिचर्ड इंग्लिश बुक है मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। रिचर्ड इंग्लिश वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ एनिमल, बिग क्रिटिक। कभी उसने एनिमल को, वो कहता है एनिमल ने जब क्रॉनिक डिजीज लिखी थी ना वो बीमार हो चुका था, तो इसलिए, और रिचर्ड ह्यूजेस ने कभी खुद पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबर था, बर्नेट, ह्यूजेस थे और पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबर, उन्होंने 6 से ऊपर गए नहीं कभी प्रिस्क्राइबर में, मगर उसे लॉ ऑफ सिमिलर पे बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा बाकी म्याज़म ये रबिश थ्योरी है, कुछ नहीं है, एनिमल बुढ़ा हो चुका था इसलिए वो सब रबिश है, मगर ये सब थी। बट ही वाज अ मास्टर प्रिस्क्राइबर। क्यों मास्टर प्रिस्क्राइबर था? क्योंकि उसकी एडवांस पैथोलॉजी में ये ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, जहां पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग की बात आती थी। बर्नेट क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज ऑफ हिज कैंसर केसेस, बिकॉज ऑफ हिज एडवांस पैथोलॉजी। तो वहाँ सीखने का है, वहाँ पे वहाँ उनसे सीखने का है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनोन तो एक गाइड है आपको, आपको अलग अलग रिसोर्सेज से देखना पड़ेगा कहाँ क्या चाहिए, कोई वन साइज फिट ऑल नहीं है कहने का मतलब। नेक्स्ट प्लीज। हाँ ये CRF का केस बहुत अच्छा केस। चलो नेक्स्ट प्लीज। ये ना दिस आई गिव आर्मी का, मैं आपको दवाई पहले से बता दे रहा हूँ कि मैं कैसे दवाई को समझता क्या। तो देखिए इस पेशेंट को पता ही नहीं था उसको क्या, पेशेंट को क्या सिम्टम था कि इसको अपनी मदर का कराने आई वो टेस्ट, उसने अपना भी कराया, पता लगा हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन है तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप थायराइड टेस्ट करा लो, पता लगा। और फर्स्ट टाइम astonishingly the first time her she had just had mild weakness, mild tiredness, slight loss of appetite, and the creatinine was 6.8. She got an ultrasound done. She got to know that this one kidney is not working, almost not working, right kidney is working. So the first thing I was syphilis हुआ ना, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म आपका कहना चाहिए कि 6.8 में you should be nausea, vomiting, itching, loss of weight, hyperpigmentation, CRF यही है। और वो पेशेंट आपको माइल्ड वीकनेस, माइल्ड टायर्डनेस, माइल्ड लॉस ऑफ एपेटाइट से बता रही। तो फीलिंग वेल इन डेंजरस केसेस इज 3 रेमेडीज you have to keep in mind. Arnica is because of the denial, psychology of denial. Opium is because of the हमारा पेन रिलीविंग हार्मोन क्या है, केमिकल क्या है, एंडोर्फिन। हमारी बॉडी रिलीज करती है ना एंडोर्फिन। ओपियम इज हाई इन एंडोर्फिन। हैप्पी पर्सनालिटी, चीयरफुल पर्सनालिटी, पेन को भी उसमें कुछ नहीं है, चीयरफुल रहते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज ओपियम। थर्ड मैग ग्रुप। Magnesium is an orphan remedy. Repression, psychology of repression. So MAG पढ़ना है तो psychology of repression, आर्निका पढ़ना है तो psychology of denial, opium पढ़ना है तो psychology of euphoria. ये तीनों में एक सिम्टम एक जैसे ही आएगा, मतलब feeling well in dangerous cases. और then she had a opium miss कर जाते हैं बात थी which was differentiating. आर्निका का एक बहुत important symptom है, आरएम कीनोट में भी लिखा हुआ है, स्मॉल बॉयज। और ये आप किसी बॉयल केस में भी यूज कर सकते हैं, नॉट मेरे कोई पैथोलॉजिकल केस होना चाहिए। अगर छोटा सा बॉयल मगर उसको इतना वो पेन टच नहीं करने देगा आपको, सेंसिटिव टू टच ऑफ आर्निका जो सिफिलिटिक है वो उस बॉयल में आएगी, इज आर्निका। इसके अगर इसमें ना एक फोल्डर होगा विद्या बंसल करके, उसमें रिपोर्ट्स हैं सारी। तो दिस पेशेंट हैड अ creatinine of 6.8, she is still falling, she has a creatinine 3.2, no hemodialysis, nothing, she is still continuing. हाँ ये बनेंगे, एक बार नीचे को दिखा दो।
ये तो अभी रिसेंट रिपोर्ट 3.65, ये तो अभी रिसेंट वाली रिपोर्ट है। पुराना चलो, नेक्स्ट चलो, सर पुराना चलो, चलो 4.88, इससे और पुराना चलो 4.08 है, देखो 6.81, इसमें भी 6. This is when we started 6.81 and she still continues. There's no hemodialysis, doing fairly well. 3.2 अभी उसका creatinine है। मेरे ख्याल से 2000 एक बार करना है पहले रिपोर्ट ऊपर देखता हूँ 2021-22 कैसे है लास्ट 1 year, I think 1 year ही हुआ है इसका last 1 year, but she's still doing well just basis and this I gave her LM potency in this case. In this case I gave LM potency because जहाँ आपको याद रखना कई भी केस में जहाँ आपको लगे कि मेंटेनिंग फैक्टर उसके साथ जुड़ा हो, उसका एक्सर्शनल नेचर ऑफ वर्क था, वो उससे जुड़ा रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी जॉब है, उसका काम है, तो आप LM में दे दो बिकॉज LM gives you the leverage to repeat frequently unlike the 30 and the 20. Next please. I think I'll get over what she said. सर करे बंद थोड़ी। हाँ सर, जी जी बिल्कुल सर। बात कर दो। Any questions so far? I've tried to give you just a brief insight. एक insight मैंने आपको नहीं दिया concomitant during menses. मैं आपको 4-5 केसेस दिखाऊंगा where using just a concomitant during menses help to solve the case. Right? उसमें I have one case of lichen simplex chronicus. One was a case of celiac disease. Sorry, not celiac. CBD. Ulcerative colitis. Sorry, not celiac. जहाँ मेंसेस के सिम्टम के फॉर 94 हैनमैन कहता है कि 94 फुटनोट में कि आप ना मेंसेस से बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग के सिम्टम जरूर इंपॉर्टेंट नोट करो। तो उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं थी, उसको था तो CBD IBD इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मगर उसके मेंस्ट्रुअल सिम्टम काम आए टू प्रिस्क्राइब जो 94 में लिखा हुआ है। तो लिखा सब कुछ बुक्स में है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ हमारे को उन्हीं बुक्स को पढ़ के मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से समझ के उसे अप्लाई करना। दैट्स द ऑल वी हैव टू। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पेशेंट हियरिंग। थिंग्स वी नीड टू कम, मे बी वी विल टेक अप एनी टाइम लेटर। थैंक यू। Now I would like to invite questions for the speakers from our learners. If any किसी को कोई क्वेश्चन है सर के लिए तो प्लीज either raise your hand. It was a self-explanatory session, sir. So I would request our patron, Dr. VP Singh sir, to please say a few words regarding the session. Actually, जैसा अभी हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने कहा कि 12 साल पहले जो डॉक्टर साहब ने पढ़ाया इनको, बाकी हम भी आज से 30 साल पहले पहुंच गए। ऑर्गेनाइज एक्चुअली सबसे बोर सब्जेक्ट लगता था रियली, और सरकार की किताब होती थी हरे रंग की, उसमें ना कोई इटालिक है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, पढ़ते चले जाओ उसको, ना कोई उसमें पिक्चर है, कुछ नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब मैंने पीजी किया और वाकई जब हमने प्रैक्टिस में आकर के देखा तो वाकई ऑर्गन का बहुत बड़ा रोल है। और आज हम डॉक्टर विपिन के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि इन्होंने माइंड और ऑर्गन को इतना नज़दीक से जोड़ करके बताया है कि हमें जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं या निकल चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और बिना ऑर्गन के होम्योपैथी अधूरी है, ये आप मान करके चलिएगा। बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर साहब कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you, sir. Now I request our Vice President, Dr. Verma sir, to please present his speech. हाँ भेजा कर दो। आज का सेशन बड़ा ही अच्छा रहा और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी साथियों को, यहाँ समय से आकर के अच्छी तरह से यहाँ का सुना। और आज के स्पीकर महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I
request our General Secretary, Dr. Deepak sir, to please come forward and share his views.